गाइस, इट्स शालिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग देख सकते हो कि इस समय मैं भोपाल में नहीं हूँ, अपने कमरे में नहीं हूँ। आई एम ट्रैवलिंग करेंटली। आई एम ऑन अ स्टेकेशन। द लोकेशन इज गोवा। यू ऑल, आई मेड इट टू गोवा। सो भोपाल की ठंड वाले मौसम और वेदर से उठ के मैं गोवा के इस बीची वेदर और लोकेशन में मैं आ चुकी हूँ। थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी यहाँ पे रहती है, बट द लोकेशन दैट आई एम स्टेइंग राइट नाउ इज सो क्वाइट, सो काम। जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। ओके, सो गोवा आने से पहले आई डिड अ क्विक ग्लो अप रूटीन। मुझे पता है आप लोग को मेरे चैनल से ग्लो अप रूटीन देखना काफ़ी पसंद है, मुझे फिल्म भी करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो गोवा के वेदर और लोकेशन के हिसाब से, विच इज़ अ बीची लोकेशन, आई डिड दिस ग्लो अप रूटीन। सो द फोकस वॉज मोस्टली ऑन द बॉडी एंड हेयर एंड क्विक स्किन केयर. So without further ado, let's begin with this glow up routine. Let's go. So today's glow up is all about essential last minute glow up routine, and we will be starting off with the body. So I'm going for a full body waxing / shaving treatment. If you're comfortable with your own body hair, you do you girl, you be you. So firstly, I need to exfoliate my body's skin and hair to make sure that I won't suffer through any ingrowth hair problem and to remove the dead skin cells from my body. उसके लिए मैंने यूज किया है Mcaffine's Naked and Raw Coffee Body Scrub, coffee with coconut. This is meant for normal to oily skin, and I'll be taking up the ingrowth challenge with this product. This is one of my favorite body scrub to use on my body. I've mentioned this couple of times on my channel. So if you don't know already, Mcaffeine is India's first caffeinated personal care brand. उनके जितने भी products होते हैं, they are infused with caffeine, और caffeine हमारी skin के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है. This is a rich source of antioxidant. It helps in fighting free radical and the damages caused by free radical. Also, this brand is SLS paraben and cruelty free. So firstly, आप लोग ने देखा है wet my skin using some lukewarm water, and then I'm gonna scoop out some amount using that wooden spoon that comes with the body scrub itself, and then I will start massaging this scrub into my body in circular motion. Also, इस scrub के जो particles हैं, they are not that big or small, they're just perfect for the body hair and body skin. So this one has pure Arabic coffee in it that exfoliates the body skin and smooths the skin. It also has coconut oil in it. इसकी वजह से skin कभी dry feel नहीं होती because that nourishes the skin. So this body scrub not only exfoliates but also nourishes the skin to get better result and to solve the ingrowth hair problem and strawberry leg problem completely. You have to include this in your skincare regime and use this like twice a week. 2 से 3 मिनट इस स्क्रब को मसाज करने के बाद I'm going to rinse this off using some lukewarm water again. Now trust me when I say this, scrubbing the body and this scrub in general is a huge part of my body care regime. I do suffer through ingrowth hair problem and they can be really painful sometimes. So to maintain the overall health of my body's skin, it is very important for me to scrub my body twice a week. So moving on to next step now, that is shaving my hands. For that I've used some shaving cream, applied that all over my hands, and then using my razor I will start shaving my body. And then I asked my sister to help me scrub my back and shave my back. So firstly she started off with Mcaffeine body scrub again, and you all can see that some black dots on my back, those are back acne marks. I do get back acne, so I don't prefer like waxing, but I do prefer shaving sometimes, like once every 6 months, and this was that day because I was going for a beach vacation. So she first started exfoliating my back very gently using this coffee scrub, and then rinsed that off, and then using some shaving foam again she applied that all over my back, and using my razor she went on the direction of the hair growth and then opposite direction of the hair growth to make sure that I won't get any ingrown hair problem. Okay, and after that she rinsed my back using some normal water. अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही है, बाथरूम में ड्रेनेज है ना, उसमें से आवाज़ आ रही है ये, ठीक है। तो मैंने अपने हाथों को शेव कर लिया है. नाउ आई नीड टू टेक केयर ऑफ द अंडर आर्म हेयर एंड द लेग्स हेयर. इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं रिका वैक्स करवाऊँ, वैक्सिंग ट्रीटमेंट कराऊँ. पिछले 9 से 10 महीने जब हम लॉकडाउन में थे तब मैंने बिल्कुल भी ये ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, सैलून नहीं गई थी, और मैं खुद से ही नहीं कर सकती. आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई एम नॉट वेल ट्रेन्ड, यू नो. सो मैं प्रोफेशनल से ही करवाऊँगी. आई विल बी टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस विच इज़ नीडेड. सो लेट मी गो बैक इन द washroom, use my coffee body scrub by Mcaffeine to scrub my underarms and also my legs, ताकि डेड स्किन सेल्स वो मेल्ट अवे हो जाए. उसके बाद मुझे इनग्रोन हेयर की कोई प्रॉब्लम ना हो और वैक्सिंग करने में आसानी हो. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल सी यू, आई विल बी इन सैलून. ओके, आई एम हियर नाउ टू द सैलून. आई थिंक परफेक्ट हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं लोग. बहुत अच्छी बात है, ये चाहिए हमको इस टाइम पे. एंड दिस इज़ द रिका वैक्स, ये उन्होंने पहनने के लिए दिया है. ये अभी भी बिछाया है, नहीं था पहले.
Later that same evening. तो मैं घर आ चुकी हूँ. एक बड़ा पार्ट ग्लो अप रूटीन का कंप्लीट हो चुका है. दैट इज वैक्सिंग द अंडर आर्म्स एंड द लेग्स. ठीक है. सो 3 वीक तक अब नो हेयर. चलो ज़्यादा बोल दिया. 2 वीक्स तक अब नो हेयर. सो मैं अपने रेगुलर प्लेस पे नहीं गई थी जहाँ पे मैं यूजुअली कराया करती थी अपना ये वैक्सिंग ट्रीटमेंट. मैं एक थोड़े से हाई फाई जगह पे गई थी. मुझे पता नहीं क्यों लगा कि हो सकता है हाई फाई जगह पे उन लोग हाइजीन और अच्छे से मेंटेन करेंगे, जो कि उन्होंने किया. आई डोंट नो अबाउट माई रेगुलर प्लेस. तो या एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है ग्लो अप का. बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है यार इस बार अंडर आर्म से. पता नहीं कैसे दीदी उसने कैसे वैक्स किया, मुझे पेन ही नहीं हुआ अंडर आर्म में. माइंड ब्लोन. The next day. तो सबसे पहले एक वाइड टूथ कोम की मदद से मैं अपने बालों को डिटैंगल करूंगी. आई एम वर्किंग ऑन 3rd डे हेयर. मैंने अभी तक अपने बालों को धोया नहीं है. मेरे बाल गंदे हैं, डर्टी है, फिर भी मैं अपने बाल काट रही हूँ. आई एम टेकिंग द रिस्क. ओके, बट आप अगर इसको फॉलो करोगे ना, देन डू इट ऑन क्लीन हेयर. कैन यू सी ऐसे झाड़ू जैसे हो गए बाल, कितने रफ हो गए नीचे से वो. एनीवे, सो ये जो मेथड है उसमें यू नीड टू फ्लिप ऑल ऑफ योर हेयर लाइक दैट. उसके बाद हम लोग ऐसे कोम करेंगे आगे. ठीक है. अब एक हेयर टाई की मदद से मैं यहाँ पे हमारे बालों को यहाँ पे टाई करूँगी सामने एकदम. फिर देखूँगी कि वो मिडिल में है कि नहीं. उसके बाद आई विल स्टार्ट शिफ्टिंग इट इन द मिडिल और अच्छे से टाइटन अप कर दूंगी मैं. ठीक है, ये मिडिल में है. ठीक है. फिर एक दूसरे हेयर टाई की मदद से मैं यहाँ पे एक रबर बैंड टाई करूंगी जहाँ पे मुझे बाल काटने ना उसके थोड़ा सा नीचे. सिजर्स की मदद से मैं लेंथ को ट्रिम कर रही हूँ. आई नो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बाल काट दिया, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही रफ बाल है मेरे. सो एक बार चेक कर रही थी कि लेंथ ठीक है कि नहीं. आई नो अभी ब्लड कट कर दिया मैंने. थोड़ा सा उसे टेक्सचर देंगे बाय पॉइंट कटिंग इट. ओके, नाउ आई एम गोना पॉइंट कट माय हेयर. हेयर ड्रेसर्स और हेयर स्टाइलिस्ट ये वाला वीडियो देख के सोच रही है क्यों शालिनी, क्यों किया तुमने ऐसा. अभी मेरे बाल चिपचिप है, मुझे पता है, मुझे बाल धोना है, बट can I just tell you, I'm so happy with the result. So with this hair cutting method, I got a V shape in the back. मेरे बालों की लेंथ भी मेंटेन है. जो डैमेज हेयर थे वो सारे जा चुके हैं और सामने से मेरे बालों में थोड़ा बहुत लेयर दिख रहा है. दैट इज गोना हेल्प इन फ्रेमिंग द फेस. छोटे छोटे दिख रहे हैं आगे के बाल. सो बेसिकली जब आप ये वाला टेक्निक फॉलो करते हो ना, तो यू गेट अ V शेप हेयर कट. ओके, दिस इज द आफ्टर मैथ. ओके, पर ये निकल जाएगा आसानी से, डोंट वरी. अभी रात के 11 बज रहे हैं. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ग्लो अप रूटीन. मैंने सोचा था कि एक दिन में सब कर लूँगी, बट नहीं हो पाया. सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अ लास्ट मिनट ग्लो अप रूटीन आप लोग कह सकते हो. तो मैंने अपने बाल धो लिए हैं, कंडीशन कर लिया है, कोई नया प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, कोई नया स्टेप ऐड नहीं किया है. ओके, नेक्स्ट टाइम मैं ये नोज स्टेप्स अप्लाई करूँगी. दीज आर सम रैंडम ब्रांड. आई विल बी अप्लाइंग दिस ऑन माई नोज एंड ऑन माई चिन. ये इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है. सो ये स्किन की सिर्फ अपर लेयर पे ही काम करेगा. इट विल रिमूव द पीच फर्स्ट फ्रॉम माई नोज एंड थोड़ा बहुत ब्लैक हेड एंड वाइट हेड, इतना ज़्यादा नहीं. ठीक है, दे जस्ट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ योर स्किन. सो ये कुछ ऐसे दिखते हैं चारकोल नोज स्ट्रिप. इसका स्टेप ये होता है कि फर्स्ट स्टेप यू नीड टू सॉफ्टन अप द सर्फेस ऑफ योर स्किन यूजिंग सम लूकवार्म वाटर. सो मैं अभी लूकवार्म वाटर से नहा के आई थी. ओके, कुछ 10 से 15 मिनट तक मैं नहा रही थी, बाल धो रही थी, बॉडी को वॉश कर रही थी. सो आई डोंट नीड टू यूज लूकवार्म वाटर अगेन टू सॉफ्टन अप माई स्किन लेयर. दैट काइंड ऑफ रियली हेल्प्स, यू नो, दैट मेक्स दिस प्रोसेस वेरी वेरी इफेक्टिव. सेकेंड थिंग, आई नीड टू वेट माई नोज एंड थर्डली आई नीड टू अप्लाई दिस. चिन पे भी अप्लाई करेंगे इससे. Okay, I'm going to keep it on for 15 minutes. And for the rest of my face, I'll be using this coffee face mask by the brand the M Caffeine again. M Caffeine का coffee face mask है. And I think they also have their chocolate face mask. But I really like this one more than their chocolate face mask. Because this works really well for my skin type. So I'm going to be taking this much. ये भी ज़्यादा ले लिया, बहुत ही कम यूज़ करना पड़ता है इसे. ऑनेस्टली ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्लो अप रूटीन चल रहा हो और शालिनी कोई फेस मास्क अप्लाई ना करे. अभी मैंने ये वाला फेस मास्क इसलिए चूज़ किया बिकॉज इट डजंट हैव दैट कूलिंग और टिंगलिंग सेंसेशन एंड आई एम नॉट अप फॉर इट. मुझे अभी भी ठंड लग रही है. फेस मास्क जो होते हैं ना वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं. दिस वन इज अ हाइड्रेटिंग फेस मास्क फॉर ग्लोइंग स्किन और अभी भोपाल के टेम्परेचर के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट फेस मास्क है. सो आई एम गोना कीप दिस फेस मास्क ऑन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट. फोन पे मैंने 10 मिनट का टाइमर लगा दिया है एंड आई विल सी यू ऑल इन अ बिट.
Alright, let us remove this now. Either I'm blind, I cannot see anything. Oh, okay, now I can see it. ऐसे करने पे दिखाई देता है. ओके, चिन पे तो बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ, थोड़े बहुत पीच पास निकले, पर नोज पे अच्छा असर किया इसने. लेट मी गो रिंस दिस मास्क ऑफ यूजिंग lukewarm वाटर. ओके, आई एम बैक. फेस मास्क हटाने के बाद दिस इज व्हाट माय फेस लुक्स लाइक. दिस इज इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस. माय स्किन आल्सो फील्स हाइड्रेटेड एंड आई एम इन अ वेरी फैंसी मूड टुडे, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई अ वेरी फैंसी नाइट क्रीम और सीरम. So that was the last step which I did in my glow up routine. उसके बाद मैंने सारा सामान पैक किया. नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, फ्लाइट पकड़ा, 2 फ्लाइट चेंज किए मैंने एंड देन आई मेड इट टू गोवा. यू ऑल, गोवा में थोड़ा बहुत कंटेंट में फिल्म कर रही हूँ. लेट्स सी व्हाट आई विल पोस्ट ऑन माय चैनल. अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फिल्म दोस कंटेंट. मैंने ऐसा ग्लो अप रूटीन और किया अपने चैनल पे. वन वाज फॉर माय फ्रेंड्स अ वेडिंग, ओके, एंड सेकंड वन वाज 2021 glow up routine. अगर आप उसमें interested हो then click the I button and go watch those video. And do not forget to like and share today's video. Subscribe to my channel if you haven't already और bell icon को भी click कर देना to get notified whenever I post new videos on this channel. And I'm going to beach right now. वैसे तो शाम हो चुकी है. Should I go to beach or should I go to a restaurant? I don't know. Bye bye. Take care.